الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيلي فتربصوا حتى يأتي الله بأمري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین۔ ہر قسم کی تعریف، بڑائی و بزرگی، حمد و ثنا و کبریائی کا مستحق اس اللہ رب العالمین کی ذات ہے جو ساری کائنات کا مربی اور پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء و رسول پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی تاجدار بطحا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم مبارک علیہ، کہ جنہوں نے اللہ رب العالمین کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا۔ حضرات گرامی، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی دو جگہوں سے دو آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ ہمارا یہ وہی پرانا موضوع ہے جو محبت رسول کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس موضوع پر لگاتار محبت رسول کے موضوع پر آپ نے کچھ باتیں سماعت فرمائی ہیں، یہ اس کی آخری کڑی ہے۔ ہمیں اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طریقے سے محبت ہونی چاہیے، یہ ہم تمام مسلمانوں سے کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔
کہ ہمیں اپنے نبی سے کتنا محبت ہونا چاہیے اور کیسا ہونا چاہیے. اور ہم میں سے کچھ لوگ جو فرضی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، در حقیقت یہ محبت رسول کے دعوے میں جھوٹے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے تمہارے نبی کا، تمہارے نبی سے جو محبت ہونی چاہیے، جو الفت ہونی چاہیے، جو اسوہ ہونی چاہیے، جو صحابہ کرام کا تھا، جنہوں نے اپنے نبی کے ساتھ کر کے دکھلا دیا، وہ صحابہ کرام کا محبت اور ہماری محبت میں فرق ہے. ان کا محبت دل و جان کا محبت تھا، مال کا محبت تھا، اولاد کی محبت تھی، لیکن ہمارا صرف زبان کی محبت ہے، زبان سے صرف ہم اقرار کرتے ہیں، لیکن وہ چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہے تو ہم درگزر فرما دیتے ہیں. جبکہ اللہ رب العالمین نے قرآن عزیز کے اندر ارشاد فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ اے میرے بندو، جب تک تم اللہ رب العالمین کے راستے میں اپنی سب سے محبوب چیز قربان نہ کرو، تم اللہ رب العالمین کے نزدیک اور اس کے رسول کے نزدیک محبوب نہیں ہو سکتے ہو. آج جو سب سے اہم چیز ہے، اللہ اور اس کے کتاب اللہ اور سنت رسول کا جو فرمودات ہے، ہم اس کو ایک سائڈ میں رکھ لیتے ہیں اور اپنے منمانی کا کام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے. کسی بھی معاملے کے اندر ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت ہونی چاہیے. جس طریقے سے قرآن کریم کی آیت کریمہ ارشاد فرماتی ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، کہ اگر یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں تو انتظار کرو اللہ کی طرف سے آ جانے والے ناگہانی عذاب کا. صحابہ کرام نے کر کے دکھلا دیا اپنے رسول سے محبت. آئیے اس موضوع کی آخری کڑی وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، وہ صحابہ کرام تھے جو مال کی محبت نہیں کیا کرتے تھے، دولت کی محبت نہیں کیا کرتے تھے، اس سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہوا کرتا تھا. صحابہ کرام کا مجمع ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان موجود ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اے میرے صحابہ تم میں سے کون سا ایسا شخص ہے، کون سا ایسا انسان ہے جو اللہ رب العالمین کو قرض حسنا دے گا. اس مجمع کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مجلس کے اندر ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے جن کا نام حضرت ابو طحدہ تھا. مجمع سے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ کہا اے میرے صحابی کیا تم نے قرآن کو نہیں پڑھا ہے؟ قرآن میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جو اللہ رب العالمین کو قرض حسنا دے گا اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین اس کو جنت عطا فرمائے گا. صحابی کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اللہ رب العالمین کو قرض حسنا دوں تو کیا اللہ رب العالمین بدلے میں ہمیں جنت دے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بالکل. اے میرے صحابی اگر آپ اللہ کو قرض حسنا دو گے تو اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین جنت دے گا. وہ صحابی کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہ ہو جائیے، مدینہ کے اندر میرا 2 باغ ہے اور یہ کھجوروں کا باغ تھا. کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دونوں باغ کو اللہ کے راستے میں قرض حسنا دیتا ہوں. وہ صحابی کیا کہتے ہیں؟ پوری ملکیت تھی، وہ صحابی کی پوری ملکیت تھی.
उस बाग के अलावा उन सहाबी के पास कोई मालो दौलत नहीं था, और उस बाग के अंदर 600 खजूरों का पेड़ था और खजूर बिल्कुल पककर तैयार हो गए थे। 2-4 दिन के अंदर वो खजूर कटने वाले थे। आज हम क्या करते हैं, गल्ले की पैदावार हुई है, धान की पैदावार हुई है, कितने मुसलमान हम में से हैं उसमें ज़कात और उश्र निकालने के लिए तैयार नहीं है, और निकालते भी हैं तो उसमें जो सबसे घटिया माल आता है आपके सामने वही उश्र निकालकर मस्जिद और मदरसे के अंदर देते हैं, और फर्जी मोहब्बत रसूल का दावा करते हैं कि हम अल्लाह और उसके रसूल का हक अदा कर रहे हैं। जो सबसे घटिया माल होता है, खराब माल होता है, उस माल को निकाल के हम अल्लाह के रास्ते में खैरात करते हैं। अल्लाह क्या फरमाता है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, जब तक तुम अपना पसंदीदा माल, बेहतरीन माल अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करोगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक कबूल नहीं किया जाएगा। आदमी पैसा कमाता है, दौलत कमाता है, लेकिन इन सारी छोटी छोटी चीजों से नावाकिफ है कि ज़कात हमें कैसे देना चाहिए, उश्र हमें कैसा देना चाहिए। ये भी अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक फर्ज है। जिस तरीके से नमाज फर्ज है, जिस तरीके से आपके ऊपर रोजा फर्ज है, जिस तरीके से आपके पास माल दौलत है, इस्तिताअत है तो बैतुल्लाह का हज फर्ज है, उसी तरीके से अगर आप साहिब इस्तिताअत हो, आप मालो ज़र वाले हो, अगर आपके पास मालो दौलत है तो आपके माल में गरीबों का भी हिस्सा है, आपके ऊपर ज़कात भी फर्ज है। ये सुन्नत नहीं है, ज़कात आपको देना ही देना अगर आप साहिब इस्तिताअत हो तो। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत के अंदर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक कासिद को भेजते हैं कि जाओ मदीना के अंदर फला फला सहाबी से या फला फला आदमी से ज़कात का माल लेकर आओ। सहाबी ने सवाल किया कि ऐ अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ज़कात को हम कैसे वसूलें? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि अगर कोई शख्स एक बकरी ज़कात में दिया करता था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और बकरी के साथ रस्सी भी दिया करता था, और आज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है, अगर वो बकरी का ज़कात देता है और रस्सी नहीं देता है तो मैं उसके लिए ऐलान जंग करूंगा। इस कदर वहीद आई है। वो लोग इस कदर माल और दौलत से मोहब्बत नहीं किया करते थे। उनके दिल में यह तसव्वुर था कि ये जो माल है, ये दौलत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दी है, इसमें अल्लाह का और गरीबों का हक है, ये हमारा माल नहीं है, अपना माल वो तसव्वुर नहीं करते थे। वो है अबू तहदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सहाबी रसूल हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से आवाज निकलती है कि अल्लाह की राह में जो कर्ज हसना देगा, बदले में अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको जन्नत देगा। वो आते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मदीने के अंदर मेरे 2 बाग हैं और दोनों खजूर का बाग है। ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दोनों बाग को मैं अल्लाह के रास्ते में वक्फ करता हूँ, हिबा करता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी रसूल अबू तहदा को पास बुलाते हैं, ऐ मेरे सहाबी, ये तुम्हारे पास सिर्फ यही मिल्कियत है, 2 बाग हैं, अगर दोनों अल्लाह के रास्ते में सदका कर दोगे तो फिर तुम्हारे बाल बच्चों के लिए क्या रहेगा? ऐसा करो, एक बाग अल्लाह के रास्ते में सदका कर दो। वो सहाबी कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सा बाग सदका करूं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये तुम्हारे ऊपर है, तुम जो चाहो वो सदका कर सकते हो। वो अबू तहदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मदीने के अंदर जो उचली हिस्से में, ऊंचे वाले हिस्से में मेरा बाग है, उस बाग के अंदर खजूरों के 600 पेड़ मौजूद है और उस पर बिल्कुल फल पक चुका है। ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उसको अल्लाह के रास्ते में कर्ज हसना देता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ मेरे सहाबी है अबू तहदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने कर्ज हसना दिया, बदले में इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको जन्नत देगा। इतना कहना था कि अबू तहदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस से निकल जाते हैं और सीधा जाते हैं, अपने घर की तरफ जाते हैं। घर पे पहुंचते हैं, वो सहाबी देखते हैं कि मेरे घर पर ताला लगा हुआ, दरवाजा बंद है। पड़ोसी से पूछते हैं कि मेरे बीवी और बच्चे कहाँ गए? पड़ोसी ने बताया कि आए नबी के सहाबी,
ऐ हज़रत अबू तहदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तुम्हारे बच्चों को भूख लगी थी, बीवी को भूख लगी थी, तुम्हारी बीवी ने उन बच्चों को लेकर खजूरों के बाग में गई है। हज़रत अबू तहदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर का दरवाजा नहीं खोलते हैं, सीधा बाग की तरफ जाते हैं, खजूरों के बाग की तरफ जाते हैं, और क्या देखते हैं, खजूरों की चारों तरफ से छेद दीवारी बन गई थी, बाउंड्री मारा जा चुका था। हज़रत अबू तहदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खजूरों के बाग के बाहर से देखते हैं कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हाथों में पत्थर उठाकर खजूरों को तोड़ रहे हैं, बीवी है खजूरों को तोड़ रही है और बीन रही है, अपने दामन में अपने झोली में रख रही है। बाहर से हज़रत अबू तहदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आवाज देते हैं, ऐ मेरी बीवी इस बाग से जल्दी निकल आओ, अब ये बाग मेरा नहीं रहा, ये बाग किसी और का हो गया। ऐ मेरी बीवी जल्दी से इस बाग से अपने बच्चों को लेकर बाग से बाहर निकल जाओ। बीवी अपने बच्चों को बाग से बाहर निकल जाती है और देखती है कि बच्चों के जेब में, बच्चों के दामन में कुछ खजूर तोड़े हुए हैं, और बीवी भी अपने आंचल में कुछ खजूरें रखी हुई है। हज़रत अबू तहदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बच्चों के थैली से, जेब से उस खजूर को निकालकर उस बाग के अंदर डाल देते हैं। बीवी से कहते हैं, मेरी बीवी इन सारे के सारे खजूरों के बाग के अंदर डाल दो, अब ये बाग मेरा नहीं रहा, बाग किसी और का हो गया। बीवी कहती है कि ऐ मेरे शौहर, ये बाग तो अभी तक मेरा था, इस बाग को किसने गस्ब कर लिया, किसने हथिया लिया। कहा, मेरी बीवी पहले अपने दामन से खजूरों को उठाकर बाग के अंदर फेंक दो। हज़रत अबू तहदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बच्चों के पास जाते हैं, कुछ खजूरें खा लिए थे और कुछ खजूरें बच्चों के मुंह में थी। हज़रत अबू तहदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बच्चों के मुंह में अपनी उंगली को डालकर खजूरों को निकाल लेते हैं और अपनी निगाह को आसमान की तरफ करते हैं, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, मुझे बाग में आने में देरी हो गई, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, अनजाने में मेरी बीवी ने कुछ खजूरें खा ली, मेरे बच्चों ने कुछ खजूरें खा ली। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, जिन खजूरों पे मेरा अख्तियार था, मेरी निगाह पड़ी, मैंने उस तेरे खजूर को उठाकर तेरे बाग के अंदर डाल दिया, लेकिन जो मेरे बच्चों के पेट में चला गया, अल्लाह रब्बुल आलमीन, मैं उस खजूरों का मालिक नहीं, वो खजूर मेरे अख्तियार में नहीं है। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, इस बाग के अंदर मुझे आने में देरी हुई। बीवी कहती है, मेरे शौहर इतने घबराए क्यों, इतने परेशान क्यों हो, इस बाग को किसने गस्ब कर लिया, किसने हथिया लिया, किसने कब्जा कर लिया। कहा, है मेरी बीवी, इस बाग को किसी ने कब्जा नहीं किया, किसी ने हथियाया नहीं, किसी ने गस्ब नहीं किया, मैंने इस बाग को अल्लाह रब्बुल आलमीन को कर्ज हसना दे दिया, कर्ज हसना दे दिया मैंने इस पूरे के पूरे बाग को। बीवियां भी नेक हुआ करती थी, आज बगैर बीवी से पूछे, अगर कहीं मस्जिदों मदारिस के अंदर 1000-2000 दे दो तो घर पर आकर 100 बातें सुनने को मिलती है। वो बीवियां ऐसी थी, वो खवातीन ऐसी थी, अपने शौहर से सवाल नहीं करती हैं, पूछती हैं, क्या मेरे शौहर, ये बात तुमने अल्लाह रब्बुल आलमीन को कर्ज हसना दे दिया, ठीक है, लेकिन मुझे ये तो बताओ कि बदले में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें क्या दिया। कहा, है मेरी बीवी, इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में कर्ज हसना दोगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन बदले में तुम्हें जन्नत देगा। ऐ मेरी बीवी, मैंने इस बात को अल्लाह रब्बुल आलमीन को कर्ज हसना जन्नत के बदले में दे दिया। बीवी कहती है, मेरे शौहर, अगर जन्नत के बदले में तुमने कर्ज हसना दे दिया तो ये सौदा कोई महंगा सौदा नहीं, बहुत सस्ते में तुमने जन्नत को कमा लिया। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, अल्लाह फरमाता है, मुसलमानों, जब भी कोई चीज तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में खर्च करो तो तुम्हारे ऊपर जो सबसे महबूब चीज है तुम्हारे नजर में, वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। वो तिजारतुन तकसौना कसादहा व मसाकिन तरजौनहा, और अगर ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी इमारतें जिसमें तुम रहकर खुश होते हो, ये अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत से ज्यादा महबूब है, फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअमरिही, तो इंतजार करो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से आ जाने वाले किसी नागहानी अजाब का। एक सहाबी रसूल है, सहाबी रसूल घर की तामीर करवा रहे हैं, लेबर और मजदूर घर को बना रहे हैं, मकान बनकर तैयार हो गया। मुस्लिम शरीफ की रवायत है कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मकान के पास से गुजरते हैं, घर बिल्कुल बनकर तैयार हो गए, सहारी सहाबी थे, 2 मंजिला का मकान बिल्कुल मुकम्मल हो गया।
अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर उसी रास्ते से हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहर गए और लोगों से सवाल करने लगे, काम करने वाले मजदूरों से सवाल करने लगे, ये मेरे भाई बताओ, ये घर ये मकान किस सहाबी का है? कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये फला सहाबी का है ये मकान। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकान को देखा, आप बहुत खुश हुए और उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस अंसारी सहाबी के मकान के बारे में खैर बरकत की दुआ भी की। लेकिन वो सहाबी, अंसारी सहाबी जो अपने घर को बनवा रहे थे, अपने घर को तैयार कर रहे थे, उनके मकान में एक गुंबद बना हुआ था। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह उस गुंबद पर पड़ गई। कहा घर तो, मकान तो बहुत खूबसूरत है, मकान के बारे में आपने दुआ भी कर दी, लेकिन कहा ऐ लोगों, अगर ये अंसारी सहाबी अपने घर के अंदर गुंबद न बनाता तो बहुत अच्छा होता, कितना खूबसूरत मकान है, लेकिन इस मकान के अंदर एक ऐब है कि इस पर उन्होंने गुंबद बना दिया। और गुंबद मस्जिद की शक्ल होती है। यहाँ के लोगों को तो मालूम है कि अंसारी सहाबी का घर है, लेकिन बाहर से जो आने वाले मुसाफिर हैं उनको तो नहीं मालूम है कि यह मस्जिद है या घर है। हो सकता है मस्जिद समझकर इसके घर के अंदर कोई आने वाला बाहर का मुसाफिर घुस जाए और इसके घर में औरतें बेपर्दा हो और इनके घर की बेहुरमती हो जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मकान को की तो तारीफ की, लेकिन गुंबद पर आपने नापसंदीदगी की नजर डाली और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहकर आगे बढ़ गए। वो अंसारी सहाबी आते हैं, मजदूरों ने कहा कि है सहाबी रसूल, क्या आपको मालूम है आपके घर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए थे? वो अंसारी सहाबी कहते हैं कि मेरे भाई तुमने उनको बैठाया क्यों नहीं, नबी को बैठाया क्यों नहीं? कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी में थे और घर बनते हुए देख रहे थे कि फला अंसारी सहाबी का घर तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन घर के अंदर जो गुंबद है ये अच्छा नहीं लगता, बाहर से आने वाले लोग मस्जिद समझकर कहीं इसके घर के अंदर दाखिल ना हो जाए। वो अंसारी सहाबी पूछते हैं, एक मजदूर से पूछते हैं, दूसरे से पूछते हैं, क्या तुमने ऐसा सुना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मकान तो खूबसूरत है लेकिन घर के अंदर जो गुंबद बना हुआ है खूबसूरत नहीं है? वो अंसारी सहाबी एक मजदूर से पूछते हैं, दूसरे से पूछते हैं, तीसरे से पूछते हैं, सबने यही जवाब दिया कि हाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर की तारीफ की, लेकिन गुंबद पर उनकी नजर गई तो नापसंदीदगी का इजहार हुआ। वो अंसारी सहाबी कहते हैं कि ऐ मेरे मजदूरों, अब छत से लेकर जमीन तक इस घर को तोड़ना शुरू कर दो। मजदूरों ने कहा है मेरे आका, ऐ मेरे मालिक, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ गुंबद तोड़ने का हुक्म दिया। कहा है मेरे मजदूरों, तुम्हें नहीं मालूम कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नापसंदीदगी की निगाह मेरे गुंबद पर पड़ी और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस निगाह हमारे कौन कौन से ईद पर पड़ी मुझे नहीं मालूम, लिहाजा मेरा हुक्म है कि पूरे मकान को तोड़ दो। वो अंसारी सहाबी अपने पूरे के पूरे मकान को तोड़कर कहते हैं कि अब यहां से इस मलबे को हटा दिया जाए, ईंट को हटा दिया जाए, सीमेंट और बालू को हटा दिया जाए, एक भी ईंट इस मकान की मेरे घर के अंदर नहीं लगेगी जिस निगाह पर, जिस ईंट पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नापसंदगी की नजर लगी हो। लिहाजा वो अंसारी सहाबी अपने सारे के सारे घर को तोड़ाकर और सारे के सारे मलबे को हटाकर दूसरे सिरे से नया मलबा मंगाते हैं, नया सीमेंट और ईंट को मंगाकर घर तैयार करते हैं। ये मोहब्बत थी अल्लाह और उसके रसूल से। आज हमारा मोहब्बत क्या है? और यही वजह है कि जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, लक़द रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, कि अल्लाह उनसे राजी और अल्लाह से। एक सहाबी हैं अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, दो सहाबी हैं, एक का नाम है साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और एक सहाबी का नाम है अब्दुल्लाह इब्न जहश। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम को ऐलान कर दिया कि ऐ लोगों, कल मैदान जिहाद के अंदर जाना है और मुशरिकीन से लड़ाई लड़नी है। ये दोनों सहाबी एक एक कोने के अंदर जाते हैं और आपस में मशवरा करते हैं कि ऐ मेरे भाई, कल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग के लिए ऐलान किया है, लिहाजा चलो हम कल की जंग के लिए दुआ करते हैं। तो साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने हाथ को आसमान की तरफ उठाते हैं और दुआ करते हैं,
ऐ इलाहल आलमीन, ऐ परवरदिगार आलम, कल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान जंग का हुक्म दिया है, काफिरों से हमारा मुकाबला है। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, मैं तुझसे कबूलियत की दुआ करता हूँ। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, जब कल मैदान जिहाद के अंदर में जाऊं। अब्दुल्लाह इब्ने जहश रजी अल्लाह तआला अन्हु को कहा, मैं दुआ करता हूँ, आप आमीन कहना। साद इब्ने अबी वक्कास रजी अल्लाह तआला अन्हु दुआ कर रहे हैं, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, कल मैदान जिहाद के अंदर जब मैं जाऊं, मेरे सामने एक मेरा मुकाबिला है, मुझसे तगड़ा हो, मुझसे तंदुरुस्त हो, उसकी तलवार मुझसे बड़ी हो, मैं मुझसे ज्यादा ताकत उसके पास हो। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, वो मुझे पछाड़े, मैं उसको पछाड़ूं, वो मुझे जमीन पर गिराए, मैं उसको जमीन पर गिराऊं। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, इस कदर जंग हो कि उस जंग के अंदर दोनों आदमी पसीने में शराबोर हो जाएं, और ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, जब लड़ते लड़ते थक जाएं तो मेरे दुश्मन की तलवार मेरे गर्दन पर लग जाए। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, मैं अपने तलवार से मैं अपने दुश्मन को कत्ल कर दूं और वही उसको खत्म कर दूं। पीछे से अब्दुल्लाह इब्ने जहश रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, आमीन। तो साद इब्ने अबी वक्कास की दुआ कबूल हो गई। कहा, है मेरे भाई, मैंने दुआ कर ली, अब तुम दुआ करो। अब्दुल्लाह इब्ने जहश रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने हाथ को आसमान की तरफ उठाते हैं। कहा, है मेरे भाई, मैं दुआ करता हूँ। साद इब्ने अबी वक्कास, आप आमीन कहना। अब्दुल्लाह इब्ने जहश रजी अल्लाह तआला अन्हु ने दुआ करना शुरू कर दिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन, कल मेरा मुकाबला मेरे दुश्मन से होगा और मेरा दुश्मन इतना ताकतवर हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, मैं उसको पटकूं, वो मुझको पटके, मैं उसको पटकूं, वो मुझको पटके। इस कदर जंग का मामला गर्म हो जाए और हम दोनों पसीने के अंदर शराबोर हो जाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन, वो हमसे ज्यादा ताकतवर हो, जब हम पसीने के अंदर शराबोर हो जाएं और थक जाएं उस जंग के अंदर, अल्लाह रब्बुल आलमीन, उसकी तलवार चले और मेरी गर्दन कट जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन, उसकी तलवार से मेरी कान कट जाए, उसकी तलवार से मेरी नाक कट जाए। ये दुआ अब्दुल्लाह इब्ने जहश रजी अल्लाह तआला अन्हु कह रहे हैं और पीछे से साद इब्ने अबी वक्कास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, आमीन। सुबह हुई, जंग के लिए दोनों सहाबी गए और जिस तरीके से उन्होंने दुआ की थी, तो साद इब्ने अबी वक्कास ने अपने दुश्मन को खत्म कर दिया, काफिर को खत्म कर दिया, उसके सर को तन से जुदा कर दिया। लेकिन जब जंग खत्म हुई तो सारे काफिरों के अंदर अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के अंदर तमाम के तमाम को ढूंढने लगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखा कि अब्दुल्लाह इब्ने जहश रजी अल्लाह तआला अन्हु मुर्दों के अंदर शामिल नहीं है, जिंदों के अंदर शामिल नहीं है। मुर्दों में ढूंढ रहे हैं, जिंदों में ढूंढ रहे हैं, अब्दुल्लाह इब्ने जहश रजी अल्लाह तआला अन्हु दिखाई नहीं देते हैं। इतने में साद इब्ने अबी वक्कास रजी अल्लाह तआला अन्हु आ जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मामला है? कहा, मैं इस जंग के अंदर सारे के सारे सहाबा मौजूद हैं, मुर्दों में देखता हूं सारे सहाबा मौजूद हैं, जिंदों के अंदर सारे सहाबा मौजूद हैं, लेकिन साद इब्ने अबी वक्कास रजी अल्लाह तआला अन्हु, मुझे इस जंग के अंदर, इस मैदान के अंदर अब्दुल्लाह इब्ने जहश नजर नहीं आते हैं। साद इब्ने अबी वक्कास कहने लगे कि मेरी दुआ तो कबूल हो गई, लगता है उनकी दुआ भी कबूल हो गई। साद इब्ने अबी वक्कास पहाड़ों के अंदर, पहाड़ों के दामन में जाते हैं, झाड़ियों को हटाते हैं, झाड़ियों को हटाते हटाते देखते हैं कि अब्दुल्लाह इब्ने जहश की लाश पड़ी हुई है। उन्होंने जो कल मैदान जंग के लिए दुआ की थी अल्लाह रब्बुल आलमीन से। साद इब्ने अबी वक्कास ने देखा कि सर तन से जुदा है, लेकिन सोचते हैं हो सकता है कोई और दूसरा सहाबी हो, लेकिन जब सर को उठाते हैं तो देखते हैं कान भी कटी हुई है, नाक भी कटा हुआ है। उनको समझ आ जाती है और अपने चेहरे को आसमान की तरफ उठाते हैं, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, काश आज मैं अब्दुल्लाह इब्ने जहश की जगह पर होता। अब्दुल्लाह इब्ने जहश रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कल जो मैदान जंग के लिए दुआ की थी, काश कि मैं किया होता। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, तूने अब्दुल्लाह इब्ने जहश को दुआ को कबूल कर लिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अब्दुल्लाह इब्ने जहश रजी अल्लाह तआला अन्हु का बॉडी है, ये आपने कल शहादत के लिए दुआ की थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपकी दुआ को कबूल कर लिया। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुल्लाह इब्ने जहश रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक दुआ और की थी जो अल्लाह रब्बुल आलमीन आखिरत के अंदर कबूल करेगा। कहा, दुनिया के अंदर तो उनकी दुआ कबूल हो गई थी, और अब्दुल्लाह इब्ने जहश रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक दुआ और की थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, जब मैं कल कयामत के दिन आपके पास आऊं, अल्लाह रब्बुल आलमीन, जब तुम मुझसे हिसाब व किताब ले तो मैं कह सकूं, अल्लाह रब्बुल आलमीन, मैं तेरे रास्ते में अपने सर को कटा कराया
اپنے ناک کو کٹا کرایا، اپنے کان کو کٹا کرایا، اور بدلے میں اللہ رب العالمین کہہ دے اللہ اے عبداللہ ابن جحش تو نے اتنی بڑی قربانی دی ہے، جاؤ میں بغیر حساب و کتاب کے تمہیں جنت کے اندر داخل کرتا ہوں۔ کاش کہ اللہ رب العالمین ان کی آخرت کی دعا بھی قبول کر لیا ہوگا۔ یہ صحابہ تھے جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتے تھے۔ آج ہماری محبت کیا ہے اور نبی کے صحابہ کی محبت کیا ہے؟ ان کے اخلاق کو ہمیں پڑھنا چاہیے، ان کے کردار پر ہمیں ان کو کردار ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اب آخر میں